وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جو بندہ بھی ختم نبوت کا کام کرے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اتنا ہی تعلق بڑھ جائے گا. حضرت انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہم سے تو گلی کا کتا ہی اچھا ہے، ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ اپنی گلی اور محلے کا حق نمک خوب ادا کرتا ہے. ہمارے ہوتے ہوئے لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں اور ہم حق کے غلامی اور حق کے امتی ادا نہیں کرتے. اگر ہم ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں گے تو قیامت کے دن شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے. تحفظ نہ کیا یا نہ کر سکے تو ہم مجرم ہوں گے اور کتے سے بھی بدتر ہوں گے. یہ حضرت انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ. اور پھر فرمایا سنو، جو شخص فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرتا ہے اس کا صلہ، اس کا بدلہ جنت ہے، اور میں اس صلے کا ضامن ہوں. یعنی میں اللہ سے جنت دلوا کر رہا ہوں. کیوں؟ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ ان کو اعتماد تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے جو بندہ بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کو ضرور جنت نصیب فرمائیں گے. تو آج ہم یہ جو یہاں اکٹھے ہیں، ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد کوئی کاروباری نہیں ہے، ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد کوئی اپنا قومی کام نہیں ہے، ہمارا ذاتی کوئی کام نہیں ہے. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے یہاں ہم جمع ہوتے ہیں، اور یہاں جمع ہو کر اپنے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہے اس کو ہم آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. تو فتنہ قادیانیت جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے رونما ہونے سے پہلے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے ہر بندہ ان کو جانتا ہے، بہت اللہ کے ولی تھے، بہت نیک بزرگ تھے. مدینہ منورہ میں گئے، عمر داد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے. انہوں نے پوچھا کہ میرے علی تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ واپس جاؤ، ہندوستان میں ایک فتنہ کھڑے ہونے والا ہے، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اللہ نے تمہیں مقرر کیا، اور جاؤ. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ وہاں سے نکلے اور آ کر ہندوستان میں پھر وہ فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کیا، وہ کام کیا کہ آج بھی فتنہ قادیانیت کی کمر میں وہ میخیں ٹھکی ہوئی ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ تھوڑا بہت جو آگے بڑھ رہے ہیں یہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے ان کو کیا کہا ہے کہ یہ جی انسان ہے، ہم نے یہ کہا کہ انسانیت کے ناطے ان کی عزت کرنا ہمارے فرض ہے. ہم نے یہ کہا کہ انسان ہونے کے ناطے ہم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ جو ہے معاملات کیے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ جو ہے تعلقات بڑھائے تھے، تجارتیں کی تھی. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں، کافر 3 طرح کے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ آج کا سبق ہے. کافر کتنی طرح کے ہیں؟ 3 طرح کے ہیں. ایک عام کافر ہے جو اپنے آپ کو اپنے مذہب اور اپنے دین کی طرف منسوب کرتا ہے. یہودی ہیں، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. عیسائی ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے سکھ ہیں، وہ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں. ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں. بدھ مت اپنے آپ کو بدھ مت کہتے ہیں. جتنے بھی اس کائنات میں مذہب ہیں وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں عام کافر. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ عام کافر. عام کافر کا حکم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مواخات قائم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملات کیے، حضور نے ان کے ساتھ تجارت کی. جب تک وہ آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو نقصان نہیں دیتے تب تک آپ ان کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، لین دین بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کر سکتے ہیں. البتہ ان سے کھانے پینے کے معاملات میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ ان کا وہ کھانا پینا حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ وہ کافر لوگ حلال حرام کی کوئی غور نہیں کرتے. اس لیے کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے. باقی بیٹھنے میں، تعلقات بنانے میں کوئی حرج نہیں. البتہ کافروں کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑا جا سکتا تو رشتہ بھی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو دنیاوی دیگر معاملات ہیں وہ کریں گے. ایک کافر ہے مرتد. مرتد کون ہے؟ مرتد وہ شخص ہے جو پہلے مسلمان ہو، پہلے کیا ہو بھائی؟ مسلمان ہو،
फिर वो इस्लाम से फिर जाए। उसका हुक्म क्या है? उसका हुक्म ये है कि अगर इस्लामी हुकूमत है तो उसे 3 दिन की मोहलत दी जाएगी, उसके शुकूक व शुबहात को दूर किया जाएगा, उसके जो इश्कालात इस्लाम के मुतालिक हैं उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर 3 दिन के अंदर वो वापस इस्लाम की तरफ लौट आता है तो अल्लाह उसके साथ दोस्ती लगा लेते हैं, वो ठीक है। और अगर वो इस्लाम की तरफ वापस नहीं आता तो उसे कत्ल कर दिया जाए। ये कब है? जब इस्लामी हुकूमत है। अगर इस्लामी हुकूमत कायम नहीं है जैसे हमारे यहाँ, तो फिर ये अल्लाह जाने और उसका काम जाने। एक है चौथी किस्म मुनाफिक की। चूँकि किसी बंदे की मुनाफिकत ये अल्लाह ही बता सकते हैं, क्योंकि अल्लाह दिलों को जानते हैं, हम में से कोई बंदा किसी के दिल को नहीं जानता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अब मुनाफिक का हुक्म वही है जो आम काफिर है, या यानी जो अपने इस्लाम को ज़ाहिर ना करे, अपने आप को काफिर कहे तो वो काफिर है। और अगर वो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करता है तो दिलों के हाल अल्लाह जानते हैं, हमारे ज़िम्मे आप हो चुके हैं। मुसलमान कह रहा है अपने आप को, इसलिए हम भी उसको मुसलमान समझेंगे। एक है, 3 किस्में हो गई आपके सामने, आम काफिर, मुनाफिक, और नंबर 3 क्या है? मुर्तद। मुर्तद का हुक्म क्या है? भाई उसे क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए 3 दिन के बाद, इस्लामी हुकूमत का जब वजूद होगा। नंबर 4 जिंदीक। जिंदीक वो लोग हैं जो इस्लाम को कुफर साबित करें और अपने कुफर को इस्लाम साबित करें, के लाए हुए दीन को कहें कि वो कुफर है और जो हम कह रहे हैं कि वो इस्लाम है। इसको क्या कहते हैं? जिंदीक। यानी अपने कुफर पर इस्लाम का लेबल लगाए। मैं इसकी मिसाल आम तौर पर ये समझाता हूँ कि बाज़ार के अंदर गोश्त वाले की एक दुकान है, उसने 2 किस्म के गोश्त रखे हुए। एक पे उसने लिखा हुआ है कि ये मटन है और एक पे उसने लिखा है कि ये गधे का गोश्त है। अब ख़रीदने वालों की अपनी ज़िम्मेदारी है। हाँ, मुजरिम वो है कि मुसलमान शहर के अंदर, मुसलमानों के शहर में वो हराम गोश्त क्यों सेल कर रहा है, ये उसका जुर्म है। लेकिन उसने लिख के लगाया हुआ है कि ये क्या है? गधे का है और ये क्या है? बकरे का है, लिख के लगाया। अब ख़रीदने वाले को कोई धोखा नहीं है। ख़रीदने वाला आता है, उसने अगर गधे का ख़रीदना है तो गधे का ले लेगा, उसने बकरे का ख़रीदना है तो बकरे का ले लेगा। इसमें कोई वो हरज वाली बात नहीं। अलबत्ता उसी के साथ एक दुकान और है, उसने गधे के गोश्त पर ये लिख के लगाया कि ये मटन का गोश्त है, और मुसलमान उसके ऊपर एतमाद भी करते हैं। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा मुजरिम कौन है? जिसने क्या किया हुआ भाई जी? शराब, एक बंदा शराब बेचता है और उस शराब की बोतल के ऊपर वो हलाल की स्टैंप लगा देता है। अब बताओ ये बड़ा मुजरिम है। एक बंदा शराब बेच रहा है, ठीक है बेच रहा है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बंदा क्या करता है कि वो शराब के ऊपर हलाल का स्टैंप लगाकर जो है वो लोगों को सेल कर रहे हैं। अब बताओ इसके बारे में आप लोग क्या ख्याल करें? बोलो। एक बंदा आपका दुश्मन है, आप समझते हैं कि वो दुश्मन है, और हर बंदा जानता है कि ये फलां बंदे का दुश्मन है, आप उससे मोहतात भी रहेंगे। एक बंदा आपका दस्तो बाजू बन जाता है, आपके करीब रहता है और करीब रहकर आपके घर में डाका मारता है, आपकी ज़ात पर डाका मारता है। बताओ इन दोनों में से बड़ा दुश्मन कौन है? जो दोस्त की शक्ल में हमारा क्या है? दुश्मन है। ये कादियानी लोग जो हैं ये ज़िंदीक हैं। इनका हुक्म क्या है? इनका हुक्म ये है कि इनके साथ मुकम्मल बाइकॉट किया जाए, इनके साथ हर तरह का बाइकॉट किया जाए। इसकी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मिलती है, इसकी मिसाल सहाबा किराम के ज़माने में मिलती है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जो ज़िंदीक हैं उनका हुक्म क्या है कि उनके साथ मुकम्मल बाइकॉट किया जाए। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये कहते हैं कि हम कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन भी मानते हैं। मेरा अपना ज़ाती वाक़या में, हमारे कॉलेज में एक कादियानी टीचर है, वो रोज़ाना जब भी क्लास में आता है तो आकर सबसे पहले हदीस पाक बयान करता है, और हदीस पाक को शुरू करते हुए हम लोग कहते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो आकर कहता है क़ाला ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। यानी कि वो कहते हैं कि हम मुसलमानों से ज़्यादा ख़त्म नबूवत को मानने वाले हैं। इस तरह वो मुसलमानों को धोखा देते हैं। कलमा पढ़ने के बाद
इसी तरह वो हदीसें भी पढ़ते हैं, वो नमाजें भी पढ़ते हैं, वो रोज़े भी रखते हैं, वो लोगों के साथ बाअखलाक तरीके से पेश भी आते हैं, लोगों की खिदमत भी करते हैं और रिफाई काम भी करते हैं, लोगों की मदद और नुसरत भी करते हैं। लेकिन वो फिर एक सवाल उठाते हैं कि अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो हम काफिर क्यों हैं? हम काफिर क्यों हैं? हमारे मुसलमानों के ज़हन में भी एक दो इश्काल मैंने आज दूर करने। एक तो मैंने ये इश्काल आपका दूर किया कि मिर्ज़ई और आम काफिर में फ़र्क क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि आम काफिर का क्या हुक्म है, मुर्तद का क्या हुक्म है, मुनाफिक का क्या हुक्म है और ज़िंदीक का क्या हुक्म है। मुर्तद और ज़िंदीक ये दोनों चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर क्या है, मिर्ज़इयों में पाई जाती हैं। इसलिए कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी था वो पहले मुसलमान था। वो पहले क्या था भाई? मुसलमान था। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता दावे किए। मैं इंशाल्लाह बितरतीब इस किताब को आपके सामने पढ़ूंगा। ये बड़ा ज़बरदस्त निसाब है, हमारे दोस्त ने मुरतब किया है। तो उसने पहले वो मुसलमान था और बड़े तबलीग भी करता था और वाज़ और तकरीर भी करता था और बड़े बयानात भी करता था। फिर बिल आखिर उसे अंग्रेज़ ने ख़रीद लिया और फिर उसने यानी इस्लाम से फिर गया, तो वो मुर्तद है। तो मुर्तद का जो वकील होता है, मुर्तद को जो मानने वाला होता है, वो क्या होता है? बोलो, वो भी तो मुर्तद होता है ना। तो इसलिए ये मुर्तद भी है और ये क्या है, ज़िंदीक भी है। मुर्तद का हुक्म क्या है कि 3 दिन की मोहलत देने के बाद उसे कत्ल कर दिया जाए, इस्लामी हुकूमत कायम हो। अब इस्लामी हुकूमत नहीं है, 3 दिन की मोहलत हम नहीं दे सकते, तो उनका तरीका क्या होगा कि उनके साथ मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। अब ये अगला सवाल ये है कि कादियानी कहते हैं कि हम कलमा भी पढ़ते हैं, ख़ातमुन नबीयीन भी मानते हैं, हम लोग जो है सब कुछ करते हैं, फिर हमें काफिर क्यों कहा जाता है? तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इनके कुफर की चंद वजूहात हैं। इनके कुफर की पहली वजह यह है, मैं आपसे ये पूछता हूँ, अल्लाह ना करे हमारे मुआशरे में कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़र्रा बराबर गुस्ताखी करे तो आप लोग उसे क्या कहें? बोलो भाई। इसकी किताब है तौज़ीफ़ुल माम। इसकी जितने भी किताबचे हैं ना, जितनी भी इसने किताबें लिखी हैं, मिर्ज़ाइयों ने उसे एक रूहानी ख़ज़ाइन के नाम से कोई मेरे ख्याल में 30-40 किताबें उनके अंदर जमा कर दी। तो उसके रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 9 पर यह लिखा है, क़य्यूमुल आलमीन। क़य्यूमुल आलमीन अल्लाह का एक लक़ब है, यानी जहानों को कायम रखने वाला। क़य्यूमुल आलमीन एक ऐसा वजूद आज़म है जिसके बेशुमार हाथ, पैर और हर एक इस कसरत से है कि तादाद से खारिज और ला इंतहा अर्ज़ और तूल रखता है। यानी लंबे लंबे हाथ और चौड़े चौड़े हाथ हैं और तेंदुए की तरह इस वजूद आज़म की तारें भी हैं जो सफ़ा हस्ती के तमाम किनारों तक फैली हुई हैं। माज़अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की कोई मिसल नहीं, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं बयान कर सकता। जो बंदा भी अल्लाह की मिसाल बयान करेगा वो काफिर है। नंबर 2, इसने अल्लाह के बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी की। ये कहता है कि अल्लाह के बहुत ज़्यादा हाथ भी हैं, अल्लाह के बहुत ज़्यादा पाँव भी हैं और लंबे और चौड़े हैं। तेंदुआ एक जानवर है, जानवर के साथ अल्लाह को मुशाबत दी। ये तेंदुए यानी इस मकड़ी देख लें, जैसे मकड़ी या इसी तरह बहुत सारे जानवर मौजूद हैं जिनके बहुत ज़्यादा हाथ पाँव होते हैं, तो अल्लाह को जानवर के साथ इसने मुशाबत दी। अच्छा जी, आगे देखें, इसकी किताब ज़मीमा बराहीन अहमदिया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 312 पे लिखता है, क्या कोई अक्लमंद इस बात को कबूल कर सकता है कि इस ज़माने में खुदा सुनता तो है मगर बोलता नहीं? फिर इस सवाल के बाद ये सवाल होगा कि क्यों नहीं बोलता? क्या अल्लाह की ज़ुबान पर कोई मर्ज़ लायक हो गई? माज़अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इतने गंदे और घटिया जुमले अल्लाह के बारे में ये बकता है। अच्छा, इसकी किताब तजल्लियात इलाहिया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 396 पे लिखता है, वो खुदा जिसके कब्ज़े में ज़र्रा ज़र्रा है उससे इंसान कहाँ भाग सकता है? वो फरमाता है कि मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊँगा। माज़अल्लाह, यानी अल्लाह को चोरों के साथ इसने मुशाबत की। अच्छा जी, अल्लाह ताला कुरान पाक में जा बजा अपनी वहदानियत के दलाइल बयान करते हैं और मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह की वहदानियत के ख़िलाफ़ भी हर्जा सराई करता है। कहता है, आईना कमालात इस्लाम इसकी किताब है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 564 पर यह लिखता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खुद खुदा हूँ। क्या कहता है? मैंने ख्वाब में देखा मैं खुद खुदा हूँ और मैंने यकीन कर लिया कि मैं वही हूँ।
اب دیکھو اپنے آپ کو اللہ کا کہہ رہا ہے. پھر مرزا قادیانی